Assalamu alaikum, dear students. Now our next topic is plant kingdom or kingdom plenty. Kingdom plenty. And you know, it consists of eukaryotic, multicellular, autotrophic or photosynthetic organisms. And they are also called as the producers in the biosphere. So there are eukaryotic, multicellular, autotrophic or photosynthetic organisms, and there are mainly the plants, and these plants have been mostly divided into two groups. One is called as cryptogams, another is called as phanerogams. Cryptogams and phanerogams. These cryptogams are the plants which do not produce. There are no flowers, no seeds, no fruits. However, these are, one is non-vascular, another is vascular type. These cryptogams have no flowers, no seeds, no fruits, and these have no vasculature in one group, and there is vasculature. Xylem and phloem is absent there, and it includes algae and bryophytes. These are the two groups, 1 and 2. These are also called as lower cryptogams. These are vascular cryptogams. These are pteridophytes. These include pteridophytes, or they are commonly called as ferns. These are also called as the higher cryptogams. So we have three groups: pteridophytes, we have algae, we have bryophytes. Algae are non-vascular, lower cryptogams. Bryophytes are also non-vascular, lower cryptogams. Pteridophytes are vascular, and they are also called as higher cryptogams. And they do not produce flowers, they do not produce seeds, they do not produce fruits. And phanerogams means they produce the seeds or flowers and fruits. And there are two groups, there are gymnosperms, and there is another group, that is angiosperms. Gymnosperms do not produce seeds and fruits. They produce the seeds, but they do not produce flowers and fruits. Angiosperms produce fruits. They are flowering plants, also called as flowering plants. So these gymnosperms, they do not produce flowers and fruits, but they are seed-bearing plants, or they produce the seed. The phanerogams are seed-bearing plants. Cryptogams are without seeds. And another classification of
Kingdom plenty जो है, you have to remember that. So we have the groups like algae, we have the groups like Bryophyta, we have the groups like Pteridophyta, we have gymnosperms, and angiosperms. These are the 5 groups of plants: algae, Bryophyta, Pteridophyta, gymnosperms, and angiosperms. These are the main 5 groups of plants. And if we want to remember these 5 groups and their classification also, you can have algae first. Later on we may discuss in detail. Now we can have the algae. These algae are simple plants with thallus body. You know, this thallus is a plant body which cannot be differentiated into roots, stem and leaves. जिसमें ना रूट्स हो, ना लीव्स हो, ना स्टेम हो, उसको बोलते हैं थैलस. तो ये एल्गी जो है ये वो प्लांट्स हैं जिनमें थैलस बॉडी है. एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रियो इनमें नहीं बनता है. एंड दे आर सो कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रियोफाइटा. तो नॉन एम्ब्रियोफाइटा एक ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें सिर्फ एल्गी आता है. नॉन एम्ब्रियोफाइटा, दे डू नॉट प्रोड्यूस, दे go through sexual reproduction, they produce male gametes, female gametes, they fuse, they form the zygote, but they do not produce an embryo. And we have to study, it is 3 main groups, algae ke 3 groups. One is green algae, they are called as chlorophyta या chlorophyci. ये क्लास है इनका क्लोरोफाइसी. These are chloro means green, phyci means seaweed, so these are green alga, chlorophyci. और इसमें अगर आप याद रखेंगे एग्जाम्पल्स कलामाइडोमोनास, ये कॉमन एग्जाम्पल है इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी. दूसरा एक है उसको बोलते हैं वॉलवॉक्स, ये भी एक कॉमन एग्जाम्पल है इनमें. यूलोथ्रिक्स और एक है सुपायरोगैरा. ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी. क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, सुपायरो, ये ग्रीन कलर है and so they are called as green algae. There is another group of algae that is called as rhodophyci, and they are commonly called as red algae. They are red in color. डिटेल में हमने पढ़ना है आगे rhodophyci और red algae. And there is one example that is पोरफायरा आप याद रखेंगे. 2 एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा, जिलेडियम और एक है जिलेडियम. ये है रेड एल्गी. एंड अनदर एल्गी जो है दैट इज ब्राउन एल्गी, दैट इज कॉल्ड एज फियोफाइसी उसको बोलते हैं. फियोफाइसी, PHAEO, फियोफाइसी और
They are also called as the brown algae. They are brown in color, brown algae. और इसमें एक है कॉमन लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, ये आप याद रखेंगे, लैमिनेरिया। और एक है सारगैसम, सारगैसम। और एक है, उसको बोलते हैं एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। These are common examples of the brown algae. So algae we have to study under 3 headings. One is green algae. Green algae में हमने क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, सुपायरोगैरा ये नाम लेने हैं वहां पर। रोडोफाइसी रेड एल्गी, हाँ, पोरफायरा और जिलाइडियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, PHAEOPHYCEAE, फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। इसमें लैमिनेरिया एक है, सारगैसम एक है और एक्टोकार्पस एक है। दीज आर द मेन ग्रुप्स ऑफ द एल्गी। ये हमें डिटेल में आगे पढ़ने हैं। एंड वी हैव देन अनदर, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो हैं, they are also called as amphibian plants, amphibian plants, amphibian plants इनको बोलते हैं। but they have a root like, और प्लांट बॉडी जो है उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और सिटम लाइक स्ट्रक्चर है, सिटम लाइक स्ट्रक्चर। There are no true roots, true leaves or true stem. मैंने आपको पहले ही बताया है what is that, what that means. There is root like structure, leaf like structure, stem like structure. And they produce the embryo. They produce the embryo in their life cycle. That means they belong to a group that is called as embryophyta. Embryophyta. तो बाकी एल्गी को छोड़ के बाकी जो भी प्लांट ग्रुप्स हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, along with ब्रायोफाइटा, they belong to group the embryophyta because they produce embryo in their life cycle. And these bryophyta जो हैं, they are found in the shady places with water necessary. Water is very important for their life cycle, so they are called as amphibian plants. They need water essentially for complete their life cycle. And they have been divided into 2 main groups जो हमने पढ़ने हैं। इनमें एक है, उनको बोलते हैं हम लिवरवर्ट्स, दूसरे को बोलते हैं कॉमनली मॉसेस। लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स में एक कॉमन है, उसको बोलते हैं मार्कनशिया, मार्कनशिया, और एक है उसको बोलते हैं रिक्शिया। ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसमें लिवरवर्ट्स में। मॉसेस में एक कॉमन एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, और एक है उसको बोलते हैं सुफेगनम, सुफेगनम। ये 2 टाइप्स हैं किसके, ब्रायोफाइटा के। इसमें और एक वेरी शॉर्ट है, वो इससे अलग किया गया, उनको बोलते हैं हॉर्नवर्ट्स, वो हम उसी में डिस्कस करेंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर मेनली देयर आर 2 ग्रुप्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। एंड देयर इज अनदर ग्रुप दैट इज वी कॉल एज टेरिडोफाइटा। और एक ग्रुप है प्लांट्स का, वी कॉल देम एज टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है, इनको कॉमनली बोलते हैं फर्न्स। और एल्गी और ब्रायोफाइट्स को, वो नॉन वेस्क्यूलर है, ये इनको बोलते हैं वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर सीडलेस प्लांट्स। ये सीड्स नहीं बनाते हैं, लेकिन इनमें जाइलम और फ्लोएम है, सो दे आर कॉल्ड एज वेस्क्यूलर सीडलेस प्लांट्स। एंड दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, ये भी स्मॉल प्लांट्स हैं। एंड they have been divided into 4 groups. इनके 4 ग्रुप्स हैं।
तो अगर आप याद ही रखेंगे वो टेरिडोफाइट्स में 4 ग्रुप्स कौन से हैं, बस नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं। सिलोफाइटा एक है, सिलोफाइटा, इसका पी साइलेंट है, लाइकवाइज इसका भी पी साइलेंट है, सिलोफाइटा उसको बोलते हैं। इसमें आता है एक सिलोटम, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। और एक है मेजिप्टेरिस, इसका टी साइलेंट है, मेजिप्टेरिस। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं सिलोफाइटा के। और एक है उसको बोलते हैं लाइकोफाइटा, लाइकोफाइटा। इसमें एक है उसको बोलते हैं सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। एक कॉमन फर्न है, ये कॉमन प्लांट है ये। लाइकोपोडियम और एक है लाइकोपोडियम। ये हैं 2 एग्जाम्पल्स, लाइकोफाइटा और एक है। और इसमें और एक ग्रुप है उसको बोलते हैं सुफेनोफाइटा, 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 सुफेनोफाइटा और एक ग्रुप है इसमें टेरिडोफाइट्स में। उसमें एक कॉमन है उसको बोलते हैं इक्विस्टियम, EQUIS ETUM, इक्विस्टियम। और एक ग्रुप है इसमें 4 ग्रुप्स मैंने बताए हैं इसमें हैं, उनको बोलते हैं टेरोफाइटा, टेरोफाइटा। तो टेरोफाइटा जो है सबसे बड़ा ग्रुप है, फर्नस इन्हीं को बोलते हैं हम। ड्रायोप्टेरिस एक कॉमन प्लांट है, ड्रायोप्टेरिस दिखाया है मैंने आपको एक फर्न क्लास में, वो यही था ड्रायोप्टेरिस। एजोला ये एक वाटर फर्न है, साल्विनिया ये भी एक वाटर फर्न है, एटसेट्रा। ये सबसे बड़ा ग्रुप है इनमें टेरोफाइटा। तो ये 4 ग्रुप्स हैं। सिलोफाइटा, इसमें आता है सिलोटम और मेजिप्टेरिस, टी इसका साइलेंट है, इसका पी साइलेंट है। लाइकोफाइटा, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, सुफेनोफाइटा, इक्विस्टियम। तो सबसे बड़ा ग्रुप जिनको फर्नस आप बोलते हैं, फर्नस। हाँ, तो ये जो सिलोटम और ये मेजिप्टेरिस है, मैं बता के रखूं आपको, ये सबसे ज्यादा जो है सिलोफाइटा ये फॉसिल्स में है, फॉसिल्स की सूरत में हमारे पास ज्यादा है, तो ये सबसे पुराना है। और टेरोफाइटा जो है, फर्नस जो है, ये कॉमन है सबसे इनमें टेरिडोफाइट्स में। तो ड्रायोप्टेरिस, एजोला और साल्विनिया। तो आगे हम डिस्कस करेंगे ये इंशाल्लाह। तो उसके बाद हमारे पास और एक ग्रुप है, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आप जानते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दीज आर फ्रूटलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स में नो फ्रूट्स एंड नो फ्लावर्स होते हैं, एंड दे आर नेकेड सीड्स इनमें होते हैं, नेकेड सीड्स इनमें होते हैं। एंड these have been divided into the gymnosperms जो हैं, they also have 4 groups। इसमें एक है साइकेडेल्स, साइकेडेल्स एक ग्रुप है, उसमें एक कॉमन प्लांट है साइकस उसको बोलते हैं, साइकेडेल्स। दूसरा है सबसे बड़ा ग्रुप जो है इनमें है कॉनिफेरेल्स, कॉनिफर्स उनको बोलते हैं कॉमनली, कॉनिफेरेल्स, कॉनिफेरेल्स उनको बोलते हैं या कॉनिफर्स। इसमें सबसे कॉमन है पाइनस, सबसे बड़ा जीनस। और एक है उसको बोलते हैं हम जिंकोएल्स, जिंकोएल्स। जिंकोएल्स, जिंकोएल्स जो है इसमें एक कॉमन है जिंको बाइलोबा,
जिंको बाइलोबा। हाँ, अगर आप बादामवारी में जाएंगे वहाँ आपको ये प्लांट मिलेगा। वेरी रेयर प्लांट है ये जिंको बाइलोबा। तो और एक ग्रुप है इनमें, उसको बोलते हैं नीटेल्स। इसका जी साइलेंट है, नीटेल्स। इसमें आता है एक नीटम, GNETUM, नीटम। मैंने अभी कहा आपसे इसका जी साइलेंट है। और एक है एफिड्रा, एफिड्रा ये भी आता है इसमें। तो सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो है कॉनिफेरल्स, कॉनिफर्स इनको कॉमनली बोलते हैं, कॉनिफर्स जो हमारे यहाँ पर हैं। यार्ड कुल, हाँ वो मेनली क्या है, वो कॉनिफर्स हैं। और कुछ हैं उसमें साइकिलियल्स। और एंजियोस्पर्म्स आप जानते हैं, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो फ्लावर्स बनाते हैं, उसके बाद फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे कॉमन जो है, सबसे बड़ा ग्रुप है ये। और इसमें कॉमनली है डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, वो आप जानते हैं। तो इंशाल्लाह आगे वो हम डिस्कस करेंगे। एंड वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज ग्रुप्स।